Good morning. Today we will see a little bit different concept of the ऑपरेटिंग सिस्टम. पहले हम लोग ने क्या देखा कल, शेड्यूलर. जो शेड्यूल लिंक का काम करता है वो आपका रहता है शेड्यूलर. ठीक है. उसमें 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर: लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मिड टर्म शेड्यूलर. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मीन्स व्हाट? अ शेड्यूलर विच टेक्स long time to get run and which and the frequency count or the frequency of which is much more less. Second is short term scheduler which acts between the ready to the processor, the processes which are in a memory that will be transferred to the CPU, and the scheduler which act between them is called as a short term scheduler. The frequency and the speed is much more than other two scheduler which are the mid-term scheduler and long-term scheduler. And last one is the mid-term scheduler which is normally called as a swapper. Swapper means what? The scheduler which performs the operation of swapping. Swapping means what? Swapping means swapping in or swapping out. कहीं से तो वैल्यू उठाना या फिर कहीं से तो प्रोसेस को लेना और बाहर रख देना और बाहर की प्रोसेस को अंदर रख के रख देना. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेड्यूलर विच इज हैंडल्ड बाय द ओएस. नाउ वी विल सी लिटिल बिट डिफरेंट कंसेप्ट दैट इज द प्रोसेस शेड्यूलिंग. प्रोसेस का शेड्यूलिंग कैसे होता है? एक सिंपल डायग्राम है जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. वापस से देखो क्या होता है उसमें. सी दिस डायग्राम. यहाँ पे क्या होता है? प्रोसेस आर द स्मॉल प्रोग्राम दोज आर एग्जीक्यूटेड बाय यूजर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वेस्ट. छोटी छोटी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती रहती है. CPU एग्जीक्यूट ऑल द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द सम रूल. CPU को प्रोसेस करना है तो ऐसे नहीं है कि वो कैसे भी कुछ भी कर सकता है या फिर देयर विल बी नो सीक्वेंस और देयर विल बी नो रूल इन केस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस. बट देयर we means whom, designer of OS, older OS should follow some rules. These rules are useful or important while creating the schedule. But schedule of whom? Schedule of the process. But process with whom? The processor. Scheduling is that in which process have some amount of time of CPU. क्या रहता है? शेड्यूलिंग करते हैं मतलब क्या करते हैं हम लोग? तो कोई तो अमाउंट ऑफ टाइम हम वी हैव परफॉर्म द शेड्यूलिंग बट वी डिडंट अलाउड एनी प्रोसेस टू गेट द कंट्रोल ऑफ CPU. देन द शेड्यूलिंग इज ऑफ नो यूज. देन पर्टिकुलर वन और मोर प्रोसेस विल नॉट बी कैपेबल ऑफ रनिंग द प्रोसेस विद द CPU. What is our target? Whatever are we process we are having, that should be submitted at the CPU depending upon different criteria, and that criteria will be useful while deciding the scheduler technique. When two or more process compete for the CPU, नॉर्मली एक ही प्रोसेस है CPU के साथ, ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन मान लो देयर इज ओनली वन प्रोसेस एंड वन CPU, then the scenario is normal. But real problem will arise when there are multiple processes and one CPU, and CPU is free at a one time, and two processes are competing or applying or requesting the CPU at the same time. This or condition should be, or this condition should be necessarily will result in the deadlock or failure of system. We have to avoid all that, so we need to schedule the all the processes. So consider the diagram. फर्स्ट इज व्हाट? ऐड अ प्रोसेस टू द रेडी क्यू. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जो प्रोसेस बाहर है उसको रेडी क्यू में रखते हैं. रेडी क्यू में रखते हैं मतलब क्या है? उसके पास सब कुछ रहेगा. ओनली थिंग मिसिंग इज व्हाट? द CPU. मीन्स इट इज़ हैविंग ऑल द मेमरी, ऑल द रिसोर्सेज, मे बी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर रेडी, but it is having only one thing missing, that is the CPU. Then choose a process from ready queue. Queue means what? A data structure which we have studied in the second year. It will be collection of the primitive data types. So
In a queue, there may be one or there may be multiple processes. So we have to choose from the process from the ready queue. हम लोग चूज कर रहे हैं प्रोसेस को, लेकिन प्रोसेस ऑलरेडी कहाँ पे है, अभी के लिए रेडी क्यू में है. देन अलोकेट द प्रोसेसर टू द सिलेक्टेड प्रोसेस. रेडी में था इसलिए किसके पास आ गया वो, तो सीपीयू मिलता है, वैसे वो रनिंग के पास आता है. स्टेट डायग्राम याद करो. स्टेट डायग्राम में क्या रहता है, न्यू से चला जाता है वो रेडी के बाद अगर प्रोसेसर अलोकेट होता है तो वो चला जाता है रनिंग के बाद प्रॉपर टर्मिनेट होता है तो वो चला जाएगा टर्मिनेट के पास, या फिर एग्जिट और एल्स इट विल रिक्वेस्ट सम input or output devices or interrupt or waiting state, then it will go into wait state, and again from wait state it cannot directly go to the running state. It must go, or it should go always to the ready state and then again running state. So after that what will happen, there is a flow chart, and you better know what is the symbol of what this need of IO symbol will indicate. It will indicate the condition, if condition like that, if it need more IO, अगर उसको कुछ इनपुट और आउटपुट चाहिए तो वो किसके पास जाएगा, डिवाइस क्यू के पास चला जाएगा. एंड इफ नो नीड देन इट विल कम टू जॉब कंप्लीटेड. बाद में जॉब कंप्लीट हो जाएगा. अगर वापस से सेम कंडीशन, इफ जॉब इज नॉट कंप्लीटेड, जॉब कंप्लीट नहीं हुआ मतलब क्या है, कुछ तो ज़रूरत है, वापस से कहाँ पे चला जाएगा, कोई तो रिक्वायरमेंट. सो लेफ्ट साइड से एरो गया ऊपर. एंड कैसे होता है, जैसे भी कोई भी चीज़ उसे चाहिए तो वो वेट स्टेट पे जाता है. वेट स्टेट पे जाता है तो वो डायरेक्टली रनिंग स्टेट पे नहीं जाएगा, रनिंग में नहीं जाएगा. उसके बीच में उसको प्रोसीजर फॉलो ही करनी है. क्या करनी है फॉलो, कि वो वेट स्टेट में गया तो वेट स्टेट से वो कहाँ पे जाएगा, कंपल्सरी रेडी पे जाएगा. रेडी में वापस से उसको पुरानी जो डेफिशिएंसी थी वो फुलफिल हो गई तो इट विल एंटर इनटू द रेडी क्यू. एंड आफ्टर रेडी, एज सुन एज द प्रोसेसर विल अवेलेबल, it will go into running state, and properly ending the process, it will result into job completion. This is the full diagram and full flow chart. This is about the process scheduling. We are scheduling the process. Why? There are multiple process. Normally there is only one CPU. We have to complete, or we have to perform all the process execution with the help of only one CPU. Many times there will be situation that CPU is empty and two process request the CPU at the same time. So at that time what we should do, we have to solve this, or we have to prepare a timetable or the schedule so that this complexity can be resolved. So we have to do scheduling of the process, and this is called as the process scheduling. Now we will see one more concept, scheduling queue. Please check the diagram. It is very easy and it will be get repeated, or this is the reference diagram for the next diagram which I will be showing in next few minutes. First see, one simple diagram is there. Start from the left. It is the ready queue diagram, and at top there is a head. Head is pointing to the next register. It will be pointing to the next register, and again it will be pointing to the next register, and so on. On last register it will be the grounded, means you can say it is the last register. And what do you mean by tail? टेल मतलब एंडिंग पॉइंट. पूछ मराठी में शेपटी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, एंडिंग पॉइंट पे इंडिकेट करती है. मीन्स सिंपल डायग्राम है. हेड क्या करेगा, नेक्स्ट को इंडिकेट करेगा, और जो लास्ट रहेगा, जैसे लिंक लिस्ट में भी हम लोग ने पढ़ा था कि लास्ट पॉइंटर को क्या करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं. सिमिलर वे लास्ट रजिस्टर को क्या किया है, हम लोग ने ग्राउंड किया है. और टेल क्या करता है, बीच वाले सब रजिस्टर को अवॉइड कर देता है या फिर उसे कंसिडर नहीं करता. इट विल बी इंडिकेटिंग टू द लास्ट. टेल क्या रहती है, एंड में रहती है, पूछड़ी. सेम कंसेप्ट अप्लाई करो. हेड मतलब नेक्स्ट पे जाएगा, और टेल कहाँ पे जा रही है, लास्ट में जा रही है. अभी ये डायग्राम आपको क्यों काम में आने वाली है, एक कंसेप्ट समझ के लो. वन प्रोसेस इज देयर, हाँ, इट रिक्वायर्स मल्टीपल रिसोर्सेस मे बी,
but other resources may be required by all other processes also. So there can be a queue of process as well as keyboard. एक सिंपल एग्जांपल है, सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इजी हो जाएगी. मान लो ए नाम के कंप्यूटर को कीबोर्ड चाहिए, बी नाम के कंप्यूटर को कीबोर्ड माउस चाहिए, सी नाम के कंप्यूटर को माउस चाहिए. तो प्रोसेस है ए बी सी, उनको रिसोर्स क्या लग रहे हैं, कीबोर्ड माउस लग रहे हैं. लेकिन कीबोर्ड भी खुद का एक क्यू मेंटेन करेगा कि उसको किसके किसके पास जाना है. समझा? तो वो क्यू मेंटेन कैसे होता है ये डायग्राम मैं अभी आपको समझाऊंगा. और एक एग्जांपल देता हूँ. एक संस्कार है, संस्कार को पढ़ाई के लिए चाहिए बुक, पेन, नोटबुक. विवेक है, विवेक को चाहिए पढ़ाई के लिए, विवेक इज द प्रोसेस एंड ही विल रिक्वायर रिसोर्स लाइक पेन एंड पेंसिल. बाद में शिवम है, शिवम को पढ़ाई के लिए चाहिए बुक. तो ये उनका क्यों हो गया कि प्रोसेस 1 कौन सी है, संस्कार. प्रोसेस 2 कौन सी है, अनुराग या फिर विवेक. प्रोसेस 3 कौन सी है, शिवम. लेकिन इनको जो चीज़ें लगने वाली है वो भी खुद का क्यों मेंटेन करती है कि हम लोग को किसके पास जाना है. बुक क्या बोलेगा, सबसे पहले मुझे जाना है संस्कार के पास, उसके पास जाना है विवेक के पास, उसके बाद जाना है मुझे शिवम के पास. पेन क्या बोलेगा, मुझे जाना है खाली शिवम के पास. पेंसिल क्या बोलेगी, मुझे जाना है संस्कार एज वेल एज विवेक के पास. तो यही क्या हो गया, डिवाइस क्यू. मीन्स डिवाइस शुड ऑल्सो नो टू होम इट विल बी अलोकेटेड. ये एक सिंपल डायग्राम है, आपको मैं दिखा देता हूँ. कंसिडर दिस डायग्राम. जो पहले वाली डायग्राम थी सिमिलर है, पहले हेड टेल, बाद में रजिस्टर रजिस्टर है. वैसे ही देखो हेड टेल रजिस्टर. अभी देखो एक एक देखो. सबसे पहले ये ऊपर वाली डायग्राम देखो. ये इतनी वाली टॉप में क्या है, हेड. हेड पॉइंट आउट किसे कर रहा है, PCB7. PCB7 किसे पॉइंट आउट कर रहा है, तो PCB2. इसका मतलब क्या है, जो कोई भी पहला क्यू हेडर है, मतलब जो पहले वाला डिवाइस है वो सबसे पहले कहाँ पे रखने वाला है, PCB7 मतलब प्रोसेस 7 में रखने वाला है. देन प्रोसेस 2 में रखने वाला है. 2 में रखने वाला है, हम लोग को कैसे मालूम पड़ा, PCB2. इसीलिए एडवांस में हम लोग ने PCB पढ़ लिया. PCB क्या करता है, इट विल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस. वहाँ पे रिक्वायरमेंट एक फिर याद है, IO स्टेटस इंफॉर्मेशन, यानी उसको इनपुट आउटपुट क्या रखते हैं, CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, रजिस्टर इंफॉर्मेशन, ये सब मिलके पूरा वर्किंग होगा. धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा. तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन पे दिख रहा है, जहाँ के मैंने नीचे लाल लाइन ऑरेंज लाइन मारी है, पिंक जैसी, सॉरी, वो क्या है, तो एक क्यू हेडर है. ये क्या बोलता है कि ये जो है कोई भी यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो सबसे पहले किसे लगने वाला है, PCB7 को लगने वाला है. PCB7 के बाद उसका क्यू कहाँ पे जा रहा है, PCB2 के पास जा रहा है. लेकिन PCB2 के बाद क्या है, ग्राउंडेड, यानी एंडिंग पॉइंट खत्म हो गया. सिंपल है, सेम चीज़ अप्लाई करो. अगर इफ़ आई एम हैविंग द मैग्नेटिक टेप यूनिट 0 दैट इज द रिसोर्सेस, लेकिन ये कोई भी प्रोसेस को नहीं लग रहा है, इसीलिए उसके बाद कोई प्रोसेस दिख रही है आपको, नो. देन बोथ हेड एंड टेल आर ग्राउंडेड. ये देखो दिख रहा है, ये ग्राउंड किया है. क्यों, मैग्नेटिक टेप 0 नाम का रिसोर्सेस किसी को भी नहीं लग रहा है. पहला वाला किसे लग रहा था, PCB7 को लग रहा था और PCB2 को लग रहा था. अभी एक मिनट, अभी वापस से देखो, मेरे पास और एक रिसोर्स है. आई एम हैविंग वन मोर रिसोर्स दैट इज मैग्नेटिक टेप यूनिट नंबर 1. ये किसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग चेक करते हैं, कुछ है क्या, नहीं, ग्राउंडेड है. ये भी क्या है, ग्राउंडेड है. मतलब ये भी किसे नहीं लग रहा है, ये भी किसको भी नहीं लग रहा है. अगर लगता इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोसेस देन इट विल बी अपेयर्ड एज अ पीसी इन द केस ऑफ और इन फॉर्म ऑफ PCB, बिकॉज PCB also maintains the IO status information, इनपुट आउटपुट डिवाइस, CPU, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, रजिस्टर, क्या क्या लगते हैं वो सब PCB मेंटेन करता है. कोई प्रोसेस इसको मेंटेन ही नहीं कर रही है, मतलब इसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, तो ये दोनों को बाहर निकाल दो. मतलब
इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए ग्राउंड कर दिया। नेक्स्ट देखो, डिस्क नाम का रिसोर्स है। नेक्स्ट रिसोर्स इज व्हाट, डिस्क। इट्स हेड विल इंडिकेटिंग टू द PCB 3। मतलब सबसे पहले प्रोसेस 3 नंबर की प्रोसेस को ये मैग्नेटिक डिस्क है वो रखने वाली है। फिर किसको रखने वाली है, PCB 14 को। फिर किसको रखने वाली है, PCB 6 को। फिर कोई है क्या, तो नहीं है, तो वो क्या हो गया आपका, ग्राउंड हो गया। समझा। और टेल क्या रहती है, क्या बोला था, व्हाट आई हैव टोल्ड, टेल इज द पॉइंटर विच पॉइंट्स टू द लास्ट थिंग, दैट इज द, दिस इज द लास्ट थिंग, दिस इज द लास्ट थिंग। सिंपल है। वापस देखो, जो टर्मिनल है जिसको आउटपुट डिवाइस तुम लोग बोल सकते हो, जो आउटपुट मॉनिटर आपका रहते हैं, वो किसे लग रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट किसे है, तो ओनली PCB 5। देखो येलो कलर में दिख रहा है PCB 5। उसका टेल भी कहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे। क्यों, सिंगल पॉइंटर है। मीनिंग समझा। जैसे प्रोसेस का क्यों होता है, सिमिलर वे multiple process will require multiple resources, maybe that is terminal, memory, keyboard, mouse, register or anything. So there should be the separate queue कि उनको किसके पास जाना है, बराबर है। उनको भी मालूम रहना चाहिए ना कि उनकी रिक्वायरमेंट किससे है। जैसे पहले में क्या थी, जो पहले में थी PCB 7, प्रोसेस 7 एंड 2 को थी। मैग्नेटिक टेप 0 की रिक्वायरमेंट किसी को भी नहीं है। यूनिट 1 की रिक्वायरमेंट किसी को भी नहीं है। डिस्क की रिक्वायरमेंट किसे है, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 14, प्रोसेस नंबर 6। सिमिलर वे टर्मिनल की रिक्वायरमेंट किसे है, ओनली 5 को। तो ये क्या है, द रेडी क्यू एंड द वेरियस IO डिवाइसेस क्यू। ये देखो, अभी बोलोगे प्रोसेस क्यू कहाँ पे है, तो आप लोग एज्यूम कर सकते हैं ये है प्रोसेस क्यू, ये है प्रोसेस क्यू, ये है प्रोसेस क्यू। लेकिन ये कनेक्टेड है या फिर इंटरडिपेंडेंट है किसके साथ, तो ये है आपके डिवाइसेस का क्यू। ये डिवाइस को इतनी सारी चीज़ें रखने वाली है, ये डिवाइस को, ये प्रोसेस को डिस्क रखने वाली है। समझा, सिंपल है। अभी मतलब क्या हो गया, 2 टाइप के क्यू हो गए, प्रोसेस क्यू। प्रोसेस क्यू क्या है, वॉट एवर प्रोसेसेस आई एम हैविंग that are stored into particular order or the particular queue, that is the process queue, and all the process will require different devices. So devices itself will maintain the queue of the processes to whom it should go. This is called as the process queue. Now we will see the queuing diagram of the CPU scheduling. एक simple diagram है जो by default आपके दिमाग में है, लेकिन अभी आपको सामने यहाँ पे easily समझ में आएगी। Wait. Now we will see the queuing diagram of the CPU scheduling. This is just for clearing your concept. All things in this diagram you are knowing from before only. Consider a ready queue. Now you know where is ready queue. Ready queue means what? It is the process having everything except CPU. So as soon as CPU will be available, consider only upper line. Okay, see, only this, what it will indicate, a process from outside world where long term scheduler work, it will come into ready queue. After that, as soon as CPU will be available, it will execute with CPU and upper arrow. If everything happens normally, then it will get terminated. Remember the state diagram. In that last state, that is the exit, or else see the next line. I am indicating with it blue line. Sorry, this line. This is showing the wait state, means if or the execution is not going properly, it will come to wait state. But here are the some examples why it will come to wait state.
First is the IOQ. Maybe your process requires some input or output devices. Okay, आपके प्रोसेस को क्या रखता है, ऑलरेडी है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ तो उसको इनपुट या आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है. सो इट विल गो टू IOQ या फिर डिवाइस क्यू, एंड एज सुन एज इनपुट आउटपुट विल appear, it will be terminating the process. But how terminating? It will go to the ready queue, after that CPU, and after that properly termination. Please check this diagram I have updated. This can be more useful. Where we again check, we have covered this much. Now remember the round robin algorithm, in which every time CPU is taken away from the process when after completing its time quantum or a time slice. Then what we should do, again CPU will move to next process, again next process, and so the process which is swapping out, or which is the process from which the CPU is taken away, it is going into the wait state. So there they mention time quantum elapse, means what, जो टाइम अवेलेबल करवा के दिया था वो ख़त्म हो गया. अभी ख़त्म हो गया तो वो क्या करेगा, उसको वो सिस्टम में से बाहर आना है, मतलब वो चला गया वेट स्टेट पे. जब भी उसका टाइम आएगा तभी वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, रेडी क्यू, और रेडी क्यू से जाएगा CPU. वन मोर कंडीशन, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएशन. कभी कभी क्या होता है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, सपोर्टिंग में एडिशनल प्रोसेस है, तो वो मेन प्रोसेस बाजू में रह जाती है. जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बुक में असाइनमेंट लिख रहे हैं, तो असाइनमेंट लिखते लिखते एक ऐसा क्वेश्चन आया जो जनरल नॉलेज का है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो टाइम के लिए मेन प्रोसेस है असाइनमेंट, उसको बाजू में रख देंगे, और एक नई प्रोसेस चालू हो गई कि फ़ोन करके दोस्त को पूछना या वेबसाइट पे ढूंढना. तो जो पहले वाली बड़ी प्रोसेस थी पेरेंट प्रोसेस, वो क्या हो गई, अभी के लिए वेट स्टेट पे चली गई. वो कभी प्रॉपरली कंप्लीट होगी जब भी मुझे रिजल्ट मिलेगा, या फिर मेरा दोस्त मेरे को आंसर देगा, या फिर आपको नेट पे कुछ तो आंसर मिल जाएगा. इसका मतलब है पेरेंट प्रोसेस को इनपुट मिला तो ही पेरेंट प्रोसेस रन होने के कैपेबल होती है. लेकिन ऐसे में वो कहाँ पे जाएगी, वापस से रेडी में जाएगी, और रेडी से होके वापस से कहाँ पे जाएगी, CPU के पास से टर्मिनेट होगी. और वन मोर कंडीशन क्या हो सकती है कि इंटरप्ट. कभी कभी कोई चीज़ इंटरप्ट, जो माइक्रो प्रोसेसर में आपने अच्छे से पढ़ा है, वो इंटरप्ट आ गया तो वो रुकती है. वो इंटरप्ट फुलफिल होने के बाद वो चली जाती है वापस से रेडी क्यू के पास, और रेडी के बाद जैसे भी एज सुन एज इट विल गेट द CPU, इट विल प्रॉपरली टर्मिनेटेड. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस शेड्यूलिंग. सिंपल है. रेडी क्यू से प्रोसेस को अगर CPU मिलता है तो CPU मिलने के बाद वो एग्जीक्यूट होती है, प्रॉपरली एग्जीक्यूशन के बाद वो एग्जिट होती है. और एल्स IO रिक्वेस्ट आई, या फिर टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड हुआ, या फिर नई चाइल्ड प्रोसेस है, या इंटरप्ट आ गया, तो वो नीचे के साइड पे आती है, यानी क्या आ गई, वेट स्टेट पे आ गई. जैसे कि ये सारी स्टेट, तो ये क्या करेगी, इसको हमेशा कहाँ पे जाना है, वेट स्टेट से रेडी क्यू, और रेडी क्यू से CPU, और CPU से वो क्या होगी, एग्जिट होगी. समझा. तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा. सबसे पहले देखिए हम लोग ने शेड्यूलिंग क्यू देखा, प्रोसेस शेड्यूलिंग देखा, शेड्यूलर में देखे कि डिवाइस क्यू क्या रहता है. नेक्स्ट एक डायग्राम देखिए हम लोग ने, जो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस शेड्यूलिंग. कुछ डाउट है तो पूछ लो, व्हाट्सएप ईमेल पे लिंक लो, चेक करो. अटेंडेंस आपकी ज़रूरी है. सेम टाइम पे आपको गूगल क्लासरूम पे भी हम लोग सब नॉर्मली भेज रहे हैं, ठीक है, वो भी चेक करो. लेकिन वो मटेरियल सेम है जो थ्रू द व्हाट्सएप आपको शेयर कर रहे हैं, और आपको हर एक दिन का जो लेक्चर होता है उसके बाद वहाँ पे नीचे आपको प्रेजेंट दिखना है. पढ़ो, सुनो अच्छे से. बुक परचेस नहीं किया है तो अभी भी बुक परचेस करो, तो समझने में काफ़ी इजी रहेगा. थैंक यू.